हाँ ठीक है. So yesterday we had done till the salaries and allowances part of the ministers. Okay. और बाद में ये मालूम पड़ा था कि it was according to the law. जो planning commission जो law determine करता है वही होता है. Okay. Now today we have to study the powers and the functions of the cabinet. Okay. Powers and functions. Okay. अभी तक हमने देखे कि क्या कैसे select करते हैं, कौन कौन होता है, उन लोग का अलग अलग डिपार्टमेंट क्या है. Now we'll see what are the powers that are held by the cabinet of ministers. Now first is administrative power. Administrative power मतलब कि रूलिंग में क्या क्या पावर है, वो लोग क्या क्या लॉ इंडिया में ला सकते हैं, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं. तो फर्स्ट इज व्हाट? पॉलिसी मेकिंग. ओके. पॉलिसी मेकिंग एज द नेम सजेस्ट, वट एवर द कंट्रीज पॉलिसीज आर, these policies are made by the cabinet of ministers. Okay. The cabinet formulates both external and domestic policies of the government. It takes decisions on matters such as defense, economy, policy, security needs, presidential rule, etc., etc. So all the different ये this thing. ठीक है. अब recently government took a decision on the policy के अभी वो लोग ये करेंगे, क्या बोलते हैं, जीडीपी का 10% वो लोग स्टिमुलस पैकेज देंगे. ठीक है. सीए एनआरसी लेकर आएंगे. ओके. या तो फिर रेलवेज में नए ट्रेन का वो लोग ये करेंगे. तो these are all different policies and they are made by the cabinet ministers. ठीक है. फिर क्या था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज. whatever policies are made by the cabinet, they are responsible for seeing कि वो implement हो रहा है कि नहीं हो रहा. Once a policy decision is taken by the cabinet, it is conveyed to the minister of state and deputy minister of the concerned ministry to work out the details. ओके. अब रेलवे मिनिस्टर ने ये कर दिया तो फिर उसका जो डेप्यूटी रहेगा ही विल बी वर्किंग आउट द डिटेल्स एंड एवरीथिंग. सिविल सर्वेंट्स जो लोग होते हैं, सिविल सर्वेंट्स पता है कौन लोग? आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जो मैजिस्ट्रेट्स, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज वगैरह ये सब है. ये उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो लॉ पास हुआ है उस लॉ के हिसाब से वो लोग पॉलिसी वो लोग बराबर से चेंज करके लेकर आए. ओके. फिर क्या आता है? coordinating the functioning of the various ministers. Okay. The cabinet also coordinates. Okay, suppose there is some meeting with railway minister and finance minister. Okay. Now railway minister wants more funds allocated to railways. Okay, trains के लिए. तो he has to meet the finance minister. Okay, तो वहाँ जाएगा. तो now HRD minister wants to meet the defense minister. Defense minister wants to meet finance minister. Finance minister wants to meet home minister. Home minister मतलब तो अलग अलग ये होता है. तो यहाँ पर क्या होता है? कैबिनेट वो लोग साथ में बैठ के, ठीक है, वो लोग ये सब डिसीजन आपस में पास कर सकते हैं. अमित शाह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, दे ऑल बिलोंग टू द बीजेपी पार्टी. they are all part of the cabinet and they can sit together and they can coordinate different issues. Okay. Now features of the cabinet system. जो कैबिनेट सिस्टम है, इट इज क्या है? प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड. ओके. तो वैसे नॉमिनल हेड वी हैव डिस्कस्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स. नॉमिनल हेड में मतलब नाम का हेड, लेकिन एक्चुअली काम किसके हाथ में रहता है? काम प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहता है. कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट. Okay, the ministers as both legislators and administrators. As legislators, they attend the meeting of parliament and take active part in its debates and discussion. And as administrators, they hold different executive portfolios and carry out the administration of the union government. ठीक है. तो all the cabinet ministers, जैसे होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, they attend the parliament. अटेंड करके वो लोग नॉर्मल पार्लियामेंट, नॉर्मल एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह वो लोग डिबेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब करते हैं. और जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब वो लोग अपने डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो लोग नॉर्मली ये करते हैं. ठीक है. अब एक नॉर्मल एमपी है अगर, ठीक है, नॉर्मल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका काम क्या है? जैसे राहुल गांधी है, वो अभी कोई मिनिस्टर कुछ भी नहीं है वो, तो उसका काम क्या है? वो एमपी का काम है सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम देखना और पार्लियामेंट में जाकर डिबेट में पार्टिसिपेट करना. लेकिन निर्मला सीतारमन इज द फाइनेंस मिनिस्टर. शी हैज टू टेक केयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है वो. She has to go and participate in the debates also in the parliament, and she has to take care of the finance ministry also. ठीक है. तो जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में जब सवाल पूछा जाएगा ना, तो निर्मला सीतारमन को सवाल पूछा जाएगा. नाउ शी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट. शी इज नो लॉन्गर बिहेविंग लाइक एन एमपी. ठीक है. अब उसको सवाल पूछा जाएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, और मतलब शी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल. ओके. लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है. उसके डिसीजन पे, उसके हिसाब से बाकी सब लोगों का काम चलता है. ओके. नाउ कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर द एग्जीक्यूटिव. ओके. Now, Parliament controls the cabinet minister and the prime minister. Everyone belong to the parliament. Okay. If the parliament decides कि ये finance minister सही नहीं है तो वो लोग उसको निकाल भी सकते हैं. The parliament ensures cabinet responsibility to the people in general and to the parliament as a whole. पहला क्या है? Vote of no confidence can be passed. अगर नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट पास कर लेगा तो सारा का सारा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब गए, सबको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी. रिजेक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट बिल.
ठीक, गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या होता है, कोई नया पॉलिसी गवर्नमेंट ने लेकर आया। अब गवर्नमेंट ने नया पॉलिसी निकाला कि रेलवेज में टिकट आर गोइंग टू बी डबल। ठीक है, आज से टिकट डबल। तो ये प्रपोजल पार्लियामेंट में जब आता है तो पार्लियामेंट के हाथ में रहता है कि उसको पास करके रिजेक्ट करे। अगर पार्लियामेंट में रिजेक्ट कर दिया तो फिर रेलवे मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, रेलवे मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। रेलवे मिनिस्टर हैज टू वर्क अंडर द पार्लियामेंट, passing a bill opposed by the government, voting a cut in the budget, passing an amendment to a bill against the wishes of the government, reducing the salary of the minister, asking question, adjournment motion। adjournment का मतलब क्या होता है कि मीटिंग अभी खत्म। now we are meeting is adjourned, we are not no longer going to discuss on this topic, we'll be discussing on this topic afterwards। rejecting some government measures। so all of these powers belong to the parliament। okay, if the parliament want they can take these strict measures। okay, fine। so let us go to the next page। okay, लास्ट एक पेज बाकी है, थोड़ा ही टॉपिक बाकी है, खत्म कर लेते हैं। ओके, फाइन। ओके, नाउ उसके बाद क्या आता है, अपॉइंटमेंट्स ऑल्सो। all major appointment made by the president are decided upon by the cabinet। okay, the law minister will decide who will become the judge of the high court, the home minister will decide who will become IS officer, IPS officer, वगैरह and everything। okay, so all this council of ministers they are also responsible for appointing different positions, different positions like judges of the supreme court, high court, governors of the state, chief election commissioner कौन कौन होगा, other dignitaries कौन कौन होगा, they are all done by the cabinet minister and the advice is given to the president। okay, फिर क्या था, legislative powers। legislative power में क्या आता है, first introduction of the bill। any bill can be introduced by the council of ministers। अब let me give you an example। recently citizenship amendment bill, CAB, जो बाद में CAA बन गया, बिल से वो एक्ट बन गया, citizenship amendment act, it was presented to the parliament by the home minister अमित शाह। ठीक है, फिर 2-3 साल पहले एक और आया था फाइनेंस बिल करके, जहाँ पे उन लोग ने इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज के फाइनेंसिंग के ऊपर उन लोगों ने लॉ बनाए थे। दैट फाइनेंस बिल वाज प्रेजेंटेड बाय ऑब्वियसली द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दैट अ पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर उसके डिपार्टमेंट का बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट के अंदर। The cabinet and the Department of Administration take initiative in legislation। In fact, cabinet initiates almost 95% of the bills। जितने भी बिल पार्लियामेंट में आए हैं 95% of all of them are presented by the कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। बाद में उसके ऊपर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में बिल जीत गया देन बिल विल बिकम एन एक्ट, अगर वोटिंग में बिल हार गया देन वो बिल रिजेक्ट हो गया, नाउ इट इज नॉट एन एक्ट। वैसे ही सेम क्या हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में, अमित शाह बॉट दिस थिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आया था, उसके ऊपर फिर बाद में वोटिंग हुई थी पार्लियामेंट में एंड वोटिंग में बीजेपी वन। ठीक है, तो उसके बाद वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। एक्ट मतलब अभी कानून बन गया है वो, क्योंकि वो पार्लियामेंट में पास हो गया है। ठीक है, फिर क्या आता, source of information। now whatever information I want I can ask to the respective minister। if I want to if I want any information about the law and order system I will ask law minister। college university का information चाहिए then I will ask the education minister। okay, different ministers are there and they are responsible for handling their department। कुछ भी क्वेश्चन पूछने का तो उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा। amendment to the constitution, द कैबिनेट इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्लानिंग एंड मूविंग द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अभी मैंने बताया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये अमेंडमेंट कौन लेकर आया था, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर किसका हिस्सा है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है। समनिंग द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नाउ द कैबिनेट कैन एनी टाइम समन द पार्लियामेंट। समन द पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि अभी आज क्या है, आज है 20 मई। ओके, तो अचानक कैबिनेट बोल सकती है कि नहीं हमें 25 तारीख को हमें एक इम्पोर्टेंट लोकसभा मीटिंग रखना पड़ेगा, ऑल द एमपीज हैव टू बी प्रेजेंट। so they can summon, they can send notice to every MP throughout the country। सारे MP लोग को 5 दिन के अंदर 25 तारीख को दिल्ली में लोकसभा में जाके अटेंड करना है। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ अगर रीजन रहेगा तो अगर MP अटेंड नहीं कर सकता तो फिर भी चलेगा, बट देन ही हैज टू एक्सप्लेन कि वो क्यों अटेंड नहीं कर सकता। ओके, देन प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस, the cabinet prepares the president's special address to the parliament every year। presidents the president goes to the parliament and he makes a special address। special address का मतलब पता है क्या होता है, पूरे साल भर में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया
उसका एक बेसिक समरी, उसका एक बेसिक एंडिंग बोलते हैं ना, एंडिंग वैलिडेटरी स्पीच वो प्रेसिडेंट देता है कि हाँ पिछले 1 साल में हमारे गवर्नमेंट ने ये किया है, ये किया है, इतने गरीब लोग को खाना मिला है, इतने बेरोजगार लोग को जॉब मिला है, इतना ये मिला है, इतना वो मिला है। तो बेसिकली वो जो पूरा प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस होता है वो कौन प्रिपेयर करता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, एंड इशूइंग ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? जो अर्जेंट में जो लॉ पास करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस। ठीक है, अभी सडनली 2 दिन के अंदर अपने को एक लॉ पास करने का है। अभी जैसे कि ये लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन का लॉ इमीडिएटली लगाने का है, तो फ्रॉम टुनाइट 12 PM ऑनवर्ड्स इट इज लॉकडाउन, so that is done using ordinance. Okay, then financial powers. Okay, budget, the finance prepares this thing. Also, distinction between the council minister and the cabinet. Council minister are what? They are the of all the categories of ministers, cabinet ministers, minister of state and deputy minister. और cabinet में क्या कहता है? cabinet में आता है some portfolios like defense, home, important portfolios. Prime minister may or may not consult the other minister below the rank of cabinet. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल मिनिस्टर कंसल्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट करता है कैबिनेट को। दे आर द मोस्ट ट्रस्टेड, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसिल मिनिस्टर को पूछना जरूरी नहीं है, कैबिनेट को पूछना जरूरी है। इन द डे टू डे वर्क ऑफ द गवर्नमेंट द काउंसिल मिनिस्टर्स एज होल रेयरली मीट्स। ओके, काउंसिल मिनिस्टर सारे स्टेट्स के सब लोग थोड़ी जाके मिलते हैं, लेकिन कैबिनेट बहुत बार मीटिंग करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन रियलिटी इट इज नॉट काउंसिलर बट द कैबिनेट विच एडवाइसेस द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मेन क्या करता है? कैबिनेट ही काम में आता है, काउंसिल इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फाइन, जस्ट वन सेकंड। अभी मैं देखता हूँ कोई और पेज रह तो नहीं गया। यहाँ तक का तो मेरे पास है, ताहा ने सेंड किया था। वेट अब्दुल्ला, आई एम चेकिंग तुम्हारा वाला। just one second. अच्छा, just one second. यहाँ पे ओके, दिस इज पेज नंबर 194। हाँ, उसके आगे का चाहिए अपने को, पेज नंबर 194। ओके, let me download this. ठीक है, हाँ तो आ गया। लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस थिंग। ओके, दिख रहा है ना अभी? फाइन। ठीक है, तो एनुअल बजट फाइनेंस के पावर में देख लेते हैं हम लोग। एनुअल बजट जो भी होता है इट इज पास्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, budget is passed by the parliament. No changes are made in the budget figures against the wishes of the cabinet. Any amendment in the budget proposal against the wishes of the cabinet that may be passed by the Lok Sabha amounts to the vote of no confidence in the ministry. ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है वही बजट बाद में एंडिंग में गवर्नमेंट को अप्लाई होता है। ठीक है, इफ यू आर नॉट अप्लाइंग दैट बजट देन इट मींस दैट देयर इज अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ओके, वो मिनिस्टर को भी हटा देना पड़ेगा।
अगर पार्लियामेंट ये लॉ बनाती है कि जो बजट आया हम वो बजट को हटा के नया बजट लगाएंगे, तो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर को उस पोस्ट पे रहना नहीं पड़ेगा, he will be then left with that post and new finance minister will be selected. Okay, next, finances of the government. Okay, गवर्नमेंट में अलग फाइनेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए, वो डिपार्टमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए, ये ब्रिज के लिए उतना पैसा चाहिए, ये रोड के लिए उतना पैसा चाहिए, दैट इज ऑल डन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री. एंड इंट्रोडक्शन टू द मनी बिल्स, मतलब मनी के लिए जो भी आएगा दैट इज डन बाय मनी बिल, मतलब मनी को लेकर जो भी चेंजेस जो भी लॉ आएगा दैट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ओनली. ओके, आई विल बी गोइंग लिटिल बिट फास्ट नाउ, अभी सब बहुत सारे टॉपिक रिपीटेटिव आएंगे. ठीक है, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग, कोई भी डाउट रहेगा तो बाद में यू कैन आस्क मी. ओके, emergency powers. Okay, the president cannot declare a proclamation of emergency under article 352 of the constitution without receiving in writing the decision of the cabinet. अगर कैबिनेट ने अग्री नहीं किया तो वो लोग इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते. ओके, सो द कैबिनेट इज फाइनली हैविंग द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया, क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नाउ वी हैव लास्ट टॉपिक, position the power of the prime minister. ठीक है, the president is the nominal head, the prime minister is the executive head, he is the main real head of the parliament. Okay, वो क्या करेगा, वो अलग अलग लॉ पास करेगा, he is the head of the cabinet of minister, he is the head of the council of minister and he is mainly responsible for handling all the work. The prime minister and the, ये क्या लिखा है, president, the prime minister and the president, अच्छा वही president है. So all the authority vested in the president is exercised by the prime minister. Okay, so main power belongs to the prime minister. President सिर्फ नाम के लिए होता है. On the advice of the prime minister, the president summons and calls the parliament. ठीक है, जो भी पार्लियामेंट कॉल किया जाता है, राज्यसभा लोकसभा, that is done on the advice of prime minister only. The prime minister chooses the ministers and his office and the president appoints them. ठीक है, वो एडवाइस करेगा, he advises the president on appointment of the important posts such as judges वगैरह, गवर्नर वगैरह. He is a link between the president and the council of minister. ठीक है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, दोनों के बीच में लिंक कौन है, प्राइम मिनिस्टर. वो सब डिसीजन को कोऑर्डिनेट करेगा, वो सब डिसीजन बताएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वगैरह एंड ऑल दैट. ओके, द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में पावरफुल लिंक इज प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर एनी लॉ. ठीक है, दैट इज नॉट बीन कंसीडर्ड. ठीक है, तो अलग अलग जो लॉ है, जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, दैट इज आल्सो बीन पास्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ओके, तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड है, उन लोग के दोनों के थ्रू से बाकी गवर्नमेंट का पूरा काम किया जाएगा. ठीक है, फाइन. सो आई एम एंडिंग ओवर हियर नाउ. ओके, we'll continue the remaining part tomorrow. Okay, and fine. Tomorrow we'll start with the new chapter. Civics का देखो छोटा मोटा पार्ट है वो मैं खत्म करा दूंगा. अभी जो भी ये है कैबिनेट वो मोस्टली तो मैं करा चुका हूँ. And Abdullah, one more thing, you have not sent me the answers, short answers, and you have not sent me yesterday's homework जो मैंने कहा था कि सारे मिनिस्टर्स लोग के नाम चाहिए, वो मुझे आज रात तक का कैसे भी करके सेंड करो. ठीक है, और इसके बाद जाके मैं अभी तुमको ये बता रहा हूँ नेक्स्ट वाला क्या करने का है. ताहा को तो मैंने बोला है कॉमर्स का सेंड करने के लिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट कॉमर्स फॉर हिम. ठीक है, तुम्हारे लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट अदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी, दोनों में से कोई भी एक. बायोलॉजी स्टार्ट किया था हम लोग ने, और सो टेल मी कि बायोलॉजी का वो कंप्लीट हुआ था कि नहीं. उसके बाद अगर वो हो गया देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी. ओके, बायोलॉजी का वो चैप्टर का नाम सेंड करो मुझे. सो विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन. फोटोज सेंड करो मुझे, सो विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. ओके, फाइन. चलो, अल्लाह हाफिज़. आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ. ओके, बाय.